Can you please introduce yourself first? Yeah, hi. I'm Amitabh Bachchan. I'm the founder and the presenter of Kaun Banega Crorepati. That's what I wanted to be. But anyhow, I'm Gur Saurabh. I am the founder of Dhruv Vidyut, Hmm. and Dhruv Vidyut is my startup. And what I'm trying to do is I've invented something, a device that bolts onto any pedal-driven application like a bicycle and upgrades that into electric and motor-powered bicycle within minutes without any modifications. So, in a nutshell, that's what the invention is. And what my startup is trying to do, or what I am trying to do, is we have a lot of disparity when it comes to India and when it comes to mobility, especially. It's been 70 plus years since our independence, but the primary mode of transport has been bicycles. And the same old, Atlas design, Gandhi cycle, you know the cycle I'm talking about. And people have been traveling on those for the last 50 years, and somehow their life is sort of restricted to as far as the bicycle can take them. And, this is high time that that changes. And at least we bring up newer options of mobility which can take people further, faster, carry more load. And I believe that sort of adoption at a large scale in India can only come through retrofitment, whereas something that's already there in the market, we can just upgrade that. Push in a new product is going to take decades in a country like India. And just to give you the numbers, I mean, 58% of daily commute in India happens on bicycles. 58%. That's like half a billion people. So that's my intent, and that's the startup's intent, and that's what we are here for, I guess. So, Mr. Singh, I want to know that this is a great project which you have made. So, I just want to know that how this idea came to your mind to make such kind of product. Right. I've just explained that Mm. very large population. I mean, which city are you from again, Nitisha? I'm from Delhi. Oh, you're from Delhi. Great. So, so if you go around, you see around what's happening. Mobility कहाँ चल रही है, किस पे लोग आना जाना किस पे कर रहे हैं. कोई एक दो लोगों का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. इंडिया में ना 15 लाख साइकिल बिकते हैं एक महीने के. दैट Right. मीन्स 15 लाख यूजर्स हैं. तो 15 लाख यूजर्स अगर साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल को कितना पुश कर सकते हैं हम, मतलब 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपका मोबिलिटी का दायरा रहता है. अभी जी. अगर हमारी लाइफ से, आपकी लाइफ से, मेरी लाइफ से मैं अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हटा दूं, कार हटा दूं, बाइक हटा दूं, मेट्रो हटा दूं, तो मेरी सोच भी फिर उतनी छोटी हो जाएगी. मुझे भी सब कुछ उतने में ही चाहिए, 5-6 किलोमीटर में, और जो मिल रहा है उसी में गुजारा करना पड़ेगा. अब ये एक प्रॉब्लम है, ये सबको दिख रही है. बट इसके साथ इसके चैलेंज बहुत बड़े हैं कि इसको कैसे टैकल करेंगे. साइकिल काफी सस्ती है, उसके बाद एक्टिवा स्प्लेंडर अभी 1 लाख रुपए का हो गया. बीच में कुछ चाइनीज ऑप्शंस हैं, वो रिलायबल नहीं है. तो साइकिल से अपग्रेड करें कैसे? तो ये प्रॉब्लम पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी. तो इसका एक अटेम्प्ट मेरे को था कि ये एक आइडिया है मेरे पास जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि काफी फास्ट तरीके से अडॉप्ट हो जाएगा. और बाइसिकल को मोटराइज करना कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई बहुत ही स्पेशल आइडिया है. ये जो भी कोई देखता है उसको कभी ना कभी, आपको भी, किसी को भी ये आइडिया कभी ना कभी आया होगा कि यार बाइसिकल को ही मोटराइज कर देते हैं. तो बहुत अटेम्प्ट्स हुए हैं दुनिया में इसको मोटराइज करने के. मोटराइज करना और फिर मार्केट में पुश करना, रूरल तक पहुंचना, अर्बन तक भी. यहाँ पे दिल्ली में जोमेटो ब्लिंकिट भी अभी साइकिल्स पे डिलीवरी हो रही है. तो साइकिल्स इंटेग्रल पार्ट है. तो ये मेरे पास एक आइडिया था कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं हम्म. जो बिल्कुल बोल्ट ऑन हो जाएगा, ज्यादा कुछ उसमें मॉडिफिकेशन या ऐसा कुछ नहीं रहेगा. और बस उसको एक छोटा सा होगा और उसको आप उठा के लगा ले. और चाहिए तो ऐसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं बाइसिकल्स के, जो उनके पूरे सप्लाई चेन सेट हैं, पूरी एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स हैं, लोगों का एक उसके रिलायबिलिटी का एक उनके दिल में एक है कि ये साइकिल उनका रिलायबल है. सो हम उसी को ही यूज करके जस्ट अपग्रेड कर देते रेट्रोफिट में. तो ये एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट था, ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा वो भी इस स्केल पे. सो बट क्योंकि मैं इस पे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस विल वर्क, बिकॉज ओवरऑल आई कम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ. आई कैन. तो दो ही पार्ट है यहाँ पे ज्यादा बड़ा. एक प्रोडक्ट स्टेज पे अगर दो ही चीजें समझ ले तो सब कुछ समझ आ जाता है. वेयर इज क्वालिटी एंड द कॉस्ट. क्वालिटी कितना मेंटेन रखना है, कॉस्ट कितना रखना है. तो आई नो आई कैन समहाउ
I was confident that I have what it takes to make a product like that. तो बस मेरा ऐसा था। और कई बार प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं, और अगर हम बड़े स्केल पे सोचे कि एक ही झटके में मैं पूरा इंडिया का सॉल्व कर दूंगा, उससे पहले मेरे को स्टेट करनी पड़ेगी, स्टेट से पहले डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से पहले अपने ही गांव में मेरे को पहले देखना पड़ेगा। सो कई बार एक छोटी सोच लेके आप चलते हो, और वो बिल्कुल परफेक्ट एक फर्स्ट स्टेप बन जाता है। तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप वही था कि मैं प्रोडक्ट को डेवलप करूं, एक अपना डेमो पहले खुद सेटिस्फाई हूं, उसके बाद जितने लोगों को मैं जानता हूं उन तक पहुंचे। और अगर वहां तक भी सक्सेसफुल हो गई, आगे चली जाएगी, देन मेरे जैसे गांव, मेरे जैसे लोग, इनके जैसे लोग तो पूरे इंडिया में है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जो है, मैं जो जो चाह रहा हूँ एक रेवोल्यूशन लाना, ये आ जाएगा ऐसे करके। सो दैट वाज इन अ नटशेल, दैट्स द आइडिया। So, like, when did you launch your company? Like, when it is established? So, it's when it's a startup, I mean, these are difficult to explain because startup का idea, अब मैं idea stage से बताऊंगा क्या, but date of incorporation से अगर हम चलते हैं तो around 2018। Okay, 2018, you have established this company, and apart from that, the idea came to your mind in which year? Like, when did you start this invention? So date of incorporation 2018, and उसके बाद चल रहा है, right? 2018. Okay, and your company is based in where? In Delhi. In Delhi. Okay. So, like, I have gone through your website and I have read about your product also, like conversion kit. But in detail, I want to know that what kind of products you have and its uniqueness. Like, how is it different from others? So, these kind of things I want to know about your product. Right. I think primarily the differentiator is that this is a retrofit kit, and there is nothing like that available in India or anywhere else in the world. That is point number one. अभी retrofit का option नहीं है। आपके पास मोटर्स हैं, बैटरीज हैं, बट ऐसा एप्लीकेशन नहीं है which is ready to go. So retrofitting is a very tricky job because बहुत तरह के bicycles होते हैं, उनमें एक छोटा एक इंजन के जैसा अगर फिट करना है तो देयर आर मेनी मेनी पैरामीटर्स जिसको करना पड़ता है। So this device does that. That is why it is patented. That is what the patent is on, the whole fitting and the whole functioning utility of that. That is point number one. Point number two is, now in Europe, in this concept has been going around for a while because वहाँ के bicycles बहुत महंगे हैं. People can't buy a lot of different bicycles. It's not like India. So this sort of an option has been available there, but they're very very costly, and they are oriented towards the lifestyle sector. आप फिटनेस के लिए चला रहे हैं, उसमें उस तरह के गिज्मोस गैजेट्स हैं, whereas एक ग्रास रूट लेवल पे जो साइकिल पे चल रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करती है, वैसा कुछ नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का भी यामाहा का भी इसके जैसा एक प्रोडक्ट है, नॉट एग्जैक्टली दिस बट समथिंग सिमिलर, अब दैट्स 1 लाख, बिकॉज इट इज केटरिंग टू द लाइफस्टाइल सेक्टर। तो 1 लाख रुपए का थोड़ी ना कोई जो साइकिल चला रहा है वो लेने वाला है। सो द कॉस्ट इज वन थिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, इट इज बीन डिजाइन्ड इन हाउस। From day one we knew that cost is a big thing, but still quality is also a big thing. India is a very very difficult market because quality भी चाहिए तो cost भी चाहिए। तो जो फॉर्मूला हॉकिन कुकर का था, सुमित मिक्सी का था, लिज्जत पापड़ अमूल का है, कि ठीक है आप कॉस्ट भी थोड़ा सा बम्प करें, क्वालिटी भी रखें। सो टू गेट द बैलेंस राइट, so that is point number three. Point number one is that there is nothing like this which bolts on retrofitting capability. Point number two is the cost. Point number three is the quality. And point number four is all the features that it offers. Like it has USB charging. It is entirely waterproof, weatherproof. It has the load capacity to carry 170 kilos. अब ये जो फीचर्स हैं सारे, एंड मेनी अदर फीचर्स लाइक दैट, इट हैज गॉट अ ब्लूटूथ ट्रैकिंग, यू कैन, इट्स गॉट एन ऐप के बेसिस पे आप देख सकते हैं अगर चोरी हो गई तो कहाँ चली गई, अभी कितना करंट बचा है। These are the features which an Indian person riding a bicycle wants. उनको सब टेक गिज्मो नहीं चाहिए कि आपने कितना कैलोरी बर्न कर लिया, कितना क्या। These are the core features जिसके लिए ही साइकिल फेमस है। So these are the major 4 or 5 USPs. It means that it is a bicycle which provide basic usages for a person who wants to daily use a bicycle, right? No, it's not. See, okay, so somebody who's using a bicycle, I'll just, what you've said it. See, this is almost putting up the requirements of a motorcycle.
राइट? साइकिल जो चला रहा था ना, तो उसकी कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि 10 किलोमीटर में साइकिल लेके जाऊंगा, हम्म पर अभी वो 40 किलोमीटर भी जाता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट. हम्म So, so that is the value it adds. So basically, your bicycle is being converted to a motorcycle and doing all the jobs a motorcycle is supposed to do. हम्म Carry two people, carry load. आपको परेशानी नहीं है, दिन है, रात है. Upgrading a bicycle to a much better, finer, more efficient form of transportation. Okay. So I want to know that you made this product and it is very unique for a bicycle user, and like for business people also. If somebody is doing business and only on bicycle, that person can also use this. So Yes. I also want to know that what kind of innovation you have made in it. Like how did you make this product? Like what special features you have added to in this product? I have just explained that all the special features that are there. Yeah, yeah. I mean, for example, when you talk about making it weatherproof, now Mm-hmm. weatherproof तो सब कुछ चाहिए, right? Mm-hmm. और weatherproof होगा कैसे? So there has to be innovation at the grassroots level, at the designing part. So the R&D has to be very strong on that. That is why we spent 3 years before we had the first prototype. We made 13 different designs. What Mm-hmm. you see right now is the 14th design. It's Okay. not that the first design was not working, it was working really well, but then Mm-hmm. these were the parameters that had to be met, otherwise ये product वो hit नहीं होता. So Okay. weather proof करना है, हाँ, rust proof करना है, अब वो पूरा एल्यूमिनियम का है, Mm-hmm. राइट? एल्यूमिनियम इज कॉस्टली, डिफिकल्ट है, वर्क करना भी मुश्किल है, बट उसकी जो कैपेबिलिटी है, बिकमिंग रस्ट प्रूफ, बिकमिंग कंप्लीटली वेदर प्रूफ, हाँ, बिकमिंग सो लाइट. अब Mm-hmm. ये एक इनोवेशन के उसमें आता है. व्हेन यू आर इन आर एंड डी, तो ये सब आप इनोवेट करते हो, डिफरेंट मेटलर्जी में क्या कर सकते हैं हम, उसमें क्या कर सकते हैं. Mm-hmm. कॉस्ट इज अ बिग थिंग. अब बैटरीज का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि मोर देन 60% ऑफ द किट इज इंटायरली द बैटरीज. True, अब true. बैटरी को हम क्या करें, हाउ कैन वी यूज स्मॉलर बैटरीज? सो वी आर रनिंग our entire setup at a much lower voltage than what is being run in the market. तो आप जब वोल्टेज कम कर देते हो तो बैटरीज कम हो जाती हैं, बट Mm-hmm. करंट भी कम हो जाता है. तो अब हम कैसे टैकल करें? तो हमने इसको मैकेनिकली पूरा, जिस पे हमारा पेटेंट है, विच इज दैट वी आर यूजिंग लो वोल्टेज बट गिविंग वेरी हाई टॉर्क, वेरी हाई पावर. अब वो मैजिक तो हुआ नहीं है कि एवरीबडी एल्स इज यूजिंग, लेट्स से 20 batteries and we are using 10 batteries, and yet we are giving more performance than everybody else. So Mm-hmm. the innovations have happened at many scales. So some innovations happen at a design scale, Mm-hmm. some innovations happen at a mechanical scale. हाँ, Mm-hmm. चेन ड्रिवन एप्लीकेशन है, हमारे स्प्रॉकेट के साइजेस हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कोई इसके लिए कोई ऐप नहीं है, ये कर करके देखना पड़ता है एक एक चीज को. Then many innovations happen at automobile, because see, this product is a culmination of electrical engineering, automobile engineering, a little bit of chemical engineering with the batteries, and mechanical of course. तो ये दो तीन स्ट्रीम्स मिक्स होके ना ईवी इंडस्ट्री बनती है. दैट इज व्हाई ईवी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड कंपैरेटिवली, और नया इंडस्ट्री है. तो इनोवेशन ना हर हर जोन में करना पड़ता है. मैकेनिकल में भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल में भी करना पड़ता है. एक एक चीज को जो है, कैसे हम कॉस्ट को डाउन रखें, कैसे क्वालिटी को अप रखें. यूजर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी यूएसबी चार्जिंग है फॉर एग्जांपल ना, दिस हैज अ कैपेबिलिटी टू, आप अपना यूएसबी से फोन वगैरह लैपटॉप चार्ज कर सकते हो. अभी दिस हैज समथिंग दैट हैज हैपेंड pretty recently in India, that USB चार्जिंग की अभी रिक्वायरमेंट आ गई, पहले नहीं था ऐसा. Mm-hmm. तो यूएसबी चार्जिंग ऐसा नहीं है कि इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द थिंग. Mm-hmm. यूएसबी हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन यूएसबी होने से और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. Mm-hmm. अभी ओडिशा में है, अभी वी आर इन टॉक्स विद सम पीपल इन लक्षद्वीप. अभी वहां पे क्या है कि बिजली का भी इतना प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल तो आता ही नहीं है, हफ्ते में एक बार आता है. सो इफ यू हैव यूएसबी, तो आप उससे कुछ भी फोन, पंखा, लाइट या कुछ भी चलाना चाहें वो सब भी कर सकते हैं, हाँ, साइक्लोन्स में, फ्लड्स में, नॉर्मल कंडीशंस में भी. And one of the greatest features that this particular design has, that when you pedal, it acts as a generator also. तो वो अपना बैटरीज खुद ही चार्ज करता है. जब आप पेडल मारते हो, वो अपना तो एक जनरेटर की तरह हो जाता है. तो यू हैव पोटेंशियल, यू हैव एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी. आप पेडल करते रहो और चार्ज करते रहो, और जो कुछ करना है करो. So Mm-hmm. it acts as a mini generator also. So Mm-hmm. these are features that, ऐसा नहीं होता कि these are features के कोई शेल्फ रखा है, आप उठा के ये फीचर भी लगा सकते हो, ये निकाल सकते हो. ये ग्राउंड से ना, डे वन से ही डिजाइनिंग के टाइम पे ही समझना पड़ता है कि यूजर को क्या चाहिए, Mm-hmm. क्या
क्या वैल्यू एडेड होगा बट क्या इंटेग्रल होगा, उसकी हम्म रेंज है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, दीज आर इंटेग्रल फीचर्स। अगर वो एक बंदे से ज्यादा लोड ही नहीं ले पाती है, जो कि सारी भी इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स आ रही हैं, तो दे आर ऑल कॉपीज ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन द यूरोपियन मार्केट। अभी यूरोपियन मार्केट में तो एक आदमी बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है, हम्म राइट? सो इंडिया में तो ऐसा है नहीं। अगर आप साइकिल पे हो तो आप सामान भी रख सकते हो, एंड गिवन दैट साइकिल इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और हम्म कुछ नहीं है आपके पास, तो हम्म आप उस पे सामान भी रखोगे, दो लोग भी बैठेंगे, सब कुछ होगा। अगर उस पे वो नहीं चलेगी तो देन इट विल नॉट बी अ हिट प्रोडक्ट, राइट? सो हम्म सम फीचर्स बिकम वेरी इंटेग्रल, दैट इट शुड हैव गुड रेंज, उसकी क्वालिटी, बिकॉज बारिश भी होगी इंडिया में, तो इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। हम्म धूप 50 डिग्री की धूप भी पड़ेगी, फिर एकदम से ठंड भी आ जाएगी, तो इट नीड्स टू बी वेदर प्रूफ इन दैट मैनर, दिस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन। Then some features become value added features. Okay, let's put a GPS tracker. Let's put a USB device. Let's put couple of lights here and there to make things easier at night and so on. तो हम्म ऐसे करके जो है फीचर्स डिवाइडेड होते हैं। हम्म एंड द बिगेस्ट फीचर लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, दैट पेडल से चार्ज करना, दैट इज वेरी यूनिक एंड इट इज द हम्म ओनली डिवाइस इन द वर्ल्ड व्हिच हैज दिस सॉर्ट ऑफ अ फीचर। Yeah. So designing and everything has been done in-house, or you have done partnership with other companies also? No, it's all in house, In-house. and I come from a R&D background, so R&D is my specialty. Mm-hmm. And our team is also, core deep tech की जो research है. Mm-hmm. So, if you go on our Instagram page, you see the initial 4 or 5 years ago, what was happening, the designs, and what we were thinking and how we progressed so far. This is all deep research done in house. और ये in house research अगर जब तक नहीं होगी, Mm-hmm. अगर if you are like, okay, I can rely on somebody else, but then India, when it comes to the manufacturing sector ना, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया से जा रहा है, वो ना जा चुका है। Mm-hmm. It's and there is no big player left who has R&D capabilities. I mean, I don't know if you're familiar with the automobile industry that much or not, but the same goes for electronics as well. यहाँ पे कितना एक्चुअल इनोवेट हो रहा है, Mm-hmm. कॉपी हो रहा है, असेंबल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, Right. हेडफोन्स ये वो, राइट? Mm-hmm. आप उठा के जोड़ रहे हो और Mm-hmm. आप वही उठा रहे हो जो है, कल को वो नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा, तो यू विल बी फोर्स्ड टू असेंबल दैट, एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। Yes. सो गॉन इज द टाइम व्हेन इनोवेशन यहाँ पे हो। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब टॉप लेवल पे इनोवेशन खत्म हो जाता है कि ठीक है यार, जरूरत ही नहीं है, जो मिल रहा है उठा लो, पब्लिक तो खरीद ही रही है, हमारे प्रॉफिट्स तो हो ही रहे हैं। हाँ, इनोवेशन का कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो Mm-hmm. टॉप से जब खत्म होने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट बॉटम तक आने लगता है। Mm-hmm. अभी अगर आपको मैं पूछूं कि मुझे एक हेडफोन चाहिए, तो आप बताओ, तो आपके फोन में शायद 50 लिंक होंगे जो हेडफोन्स में डील करते होंगे, हाँ? Mm-hmm. यही सेम मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए पूछ लूं, तो शायद आपके फोन में एक भी ऐसा लिंक नहीं होगा कि एक ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल रिसर्च के लिए मुझे कहीं पे गाइड कर पाएगा। Mm-hmm. तो इतना मुश्किल है, Mm-hmm. स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अगर आप कुछ R&D करना चाह रहे हो मैकेनिकल से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, Mm-hmm. इट्स मतलब 20 साल हो चुके हैं कि वो सब लोग जा चुके हैं। बहुत ही कम प्लेयर्स, लाइक बट लाइक द प्लेयर्स लाइक महिंद्रा फॉर एग्जांपल और बजाज, उनके पास R&D कैपेबिलिटीज हैं, वो लोग कर रहे हैं। बट Mm-hmm. फॉर अ स्टार्टअप, आई मीन, आई एम येट टू कम अक्रॉस के कोई डीप टेक स्टार्टअप अगर इंडिया में ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से खड़ा हुआ हो। आई थिंक ओनली वन आई नो इज एथर, जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी स्कूटर्स के लिए है। अदर Mm-hmm. देन दैट हर कोई यही कर रहा है, इससे पार्टनरशिप कर लो, उससे पार्टनरशिप कर लो, Yes. जो उनका टेक है वो हमें वैसे ही मिल जाए। अब वो प्रॉब्लम वहां पे क्या आता है कि उनका जो टेक है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए तो बना होगा ना, खाली बना के तो रखा नहीं होगा, आ जाओ Mm-hmm. 3 4 पढ़े हैं लाइब्रेरी की तरह, उठा लो जो चाहिए। अब Mm-hmm. वो किसी और पर्पस के लिए बना है, आप उसको रीपर्पस करके फिर से लेके आ रहे हो। तो इंडिया में ना क्या है कि ऑटोमोबाइल इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट, और ऑटोमोबाइल ना एक शमशान है पूरा, जहाँ पे कई सारे कंपनियां पहले ही दफन है, जो यही करने की कोशिश करते हैं कि इसका टेक उठा के यहाँ ले आओ, उसका टेक उठा के वहां ले आओ। तो ये इट डजंट वर्क। Mm-hmm. कोर लेवल पे जो प्रॉब्लम है, आप किसी का भी टेक उठा के लाओगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, और Mm-hmm. अगर आप कॉस्ट ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोर लेवल पे बोर्ड मीटिंग में तो ठीक है, आप बता दोगे कि हाँ मेरा टेक कितना अमेजिंग है, कितना कूल है। Mm-hmm. ग्राउंड लेवल पे बंदा पूछता है कि यार आपका 50,000 का टेक है साइकिल के लिए, 50,000 में तो मैं एक्टिवा ले लूंगा, तो वो आपका क्या जवाब है?
सो अगर कोर लेवल पे एड्रेस करना है तो R&D खुद से करनी पड़ती है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। मेरे को राइट। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे कॉस्ट का प्रॉब्लम, रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम, सप्लाई चेन्स का प्रॉब्लम, फाइनेंसिंग के प्रॉब्लम्स, ये सब को कोर में घुस के सॉल्व करना पड़ता है। दिस नोबडी कैन डू फॉर यू। Maybe in some industries like tech industry, app based industry, gaming, हाँ ठीक है, यहाँ पे शायद होता होगा, हम्म। because tech will be very similar ना। अभी एक ऐप यूएस में भी यूज होगी, यहाँ पे भी to be entirely, you can use हम्म। Ola Uber app here, the same app will work there, but हम्म। you can't say that for mechanical parts, automobile parts, like no, it's absolutely different, totally different. So So you right. so you have made this product. So I just want to know that components has been imported from outside, or it's all made No, of it's in India, entirely in-house. made in India. ऑफ कोर्स, बिकॉज Okay. जैसे मैंने आपको बताया ना, जब डीप टेक से शुरू करते हो, जैसे अगर आपने कहा कि यार मेरे को बैटरीज कम करने हैं, हम्म। राइट, सो लेट्स से कि सब कुछ मान लो 96 वोल्ट्स पे चलता है, फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी एल्स इज रनिंग ऑन 96, यू डिसाइड टू रन ऑन 48 वोल्ट्स, हाँ। सो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, उसके चार्जर भी नहीं मिलेगा, उसके कनेक्टर भी नहीं मिलेंगे, उसका ये भी नहीं मिलेगा, वेयर एज 96 के लिए सब कुछ रेडी पड़ा रहेगा। तो तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर सब कुछ ही डेवलप करना पड़ जाता है आप ग्राउंड लेवल से ही जब डिजाइन करते हो तो। सो मोटर भी डिजाइन करना पड़ता है, बैटरी भी डिजाइन करना पड़ता है, हर एक एक कंपोनेंट, चार्जर भी। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो Okay. सो दैट्स व्हाट वी डिड, एंड मोस्टली नाउ, हाँ ऑफ कोर्स देयर आर सम पार्ट्स दैट वी डोंट नीड टू मेक, अभी जो हम सोर्स कर लेते हैं, अभी वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, सिंपल पार्ट्स हैं, चार्जर के कंपोनेंट्स हैं, which is not viable to make them ourselves, वो easily available है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स वगैरह, ये मोटर वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, बैटरी, the battery packs are made in house, the entire aluminum casing that you see is being made, हाँ, जिसपे हमारा यूएसपीज है, so वो सब इन हाउस ही बनता है हमारे पास। और इन बाकी अदर प्रोडक्ट्स, अगर आपने कुछ। अदर हम्म। अदर प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, हम्म। वो सोर्स करने पड़ते हैं, नट्स एंड नट बोल्ट्स एक्सेट्रा, यू नीड टू सोर्स देम, चार्जर के कुछ फ्रॉम कंपोनेंट्स यू वेयर? नीड टू सोर्स देम from local markets. I mean, these are very simple Okay, so products. all is from India only, Of right? course, of Yes. course. Okay. And who are your target audience? Now bicycles ना, इंडिया में मैंने बताया ना 15 लाख साइकिल बिकते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सर्टन सेट ऑफ पीपल बाय इट, एवरीबडी बायज इट। हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत काफी वाइड है, रूरल में भी है, सेमी रूरल में, टीयर 2 टीयर 3, मतलब हर एक में फैला रहता है। However, अभी क्या है ना कि we don't have that liberty, we don't have numbers coming in के we make a million units in a month and we can choose the market. So right now our limitation is the manufacturing sector itself. It's a very slow moving sector. Okay. So हमें चूज करना पड़ता है कि हम पहले किसको प्रायोरिटी देंगे। So पहला प्रायोरिटी अभी हम रूरल में दे रहे हैं, बिकॉज रूरल में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिटीज में फिर भी काम चल जाएगा किसी तरह पे, पर रूरल में अगर मोबिलिटी नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकते। सिटी में तो कुछ तो रिक्शा तो ले लोगे, सो Okay. लाइक दैट। So how are you reaching them? Like this is your product and you want to sell to someone in rural. How you are doing that? Well, that's a very good question, because entering the rural market is very very difficult, because rural market में आज तक penetrate किसने किया है, ताकि हम उसका मॉडल स्टडी कर लें। रूरल को पेनेट्रेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। Fortunately, in our case, what had happened was कि एक तो वो जो there was a video that I made initially, you might have seen it. Yes, yes. So basically, I said nothing. It's just a silent video, and I'm just showing the product. That product became that video became viral, and then just about everybody that I meet has already seen that video. Okay. Then that is point one. Point two, then History Channel covered us. Oh my God, ye mera India covered us. Shark Tank we did. All of that publicity and marketing and led to us and the kit being popular. तो अभी क्या है कि very fortunately that has worked in our favor, and we underestimate कि फोन तो है ना सबके पास, चलो किसी ना किसी घर में 4 लोगों में से किसी एक ने तो फोन ले रखा है। Yes. तो ऐसा चीज है, और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और उन्हीं के लिए है, उनकी साइकिल के लिए। सो फॉर्चुनेटली वो मार्केटिंग का पार्ट ना बहुत बड़ा हमारा हो गया है। हम अभी so we are focusing mainly on Haryana and Punjab, because we are based in Delhi and I am from Haryana, so I want to I'm starting it from my home ground to and first establish ourselves there, and then we can expand into other states. So Haryana के अंदर अब हम जब करते हैं,
प्रोडक्ट इटसेल्फ की रिकग्निशन बहुत है. So Mm-hmm. people have already seen it. They are ready to buy it. They know the price. They know the whole Shark Tank story. They know the entire episode क्या है क्या नहीं है कैसे बनता है क्यों आता है इसके क्या फीचर है ये है वो है. तो मार्केटिंग ना हमारे फेवर में हो गया है. तो उससे उसके वजह से जो मेजर चैलेंज होता है रूरल का पेनेट्रेशन का वो हमारा एक काफी हद तक सॉल्व हो गया है. तो अभी कोई ऐसा हमें बिल्कुल इशू नहीं है उसको करने का. एंड देन अगर कभी मार्केट करने की जरूरत भी पड़ेगी Mm-hmm. so because we are the first movers here and because we have the patent and we are in the market, Mm-hmm. we will not have that much of competition. तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है मार्केटिंग का रूरल में. Okay, okay. So, like you are already doing great in the rural areas, you are saying. So, I just want to know that since you have done lots of like you have achieved lots of publicity from your videos and Shark Tanks and all. So, I just want to know that how much improvement you have seen in these months. I mean, see, मार्केटिंग ना मार्केटिंग के जो जो एक एक एस्पेक्ट है वो Mm-hmm. ना एक कंपनी का कंप्लीट अलग होता है. Mm-hmm. राइट. Mm-hmm. और मैन्युफैक्चरिंग और वो सब है वो डिफरेंट है. Mm-hmm. सो ऑफ कोर्स जब एक प्रोडक्ट अच्छा आता है और लोगों को समझ आता है तो क्या है कि बहुत पॉपुलर बहुत जल्दी होते हैं. तो मार्केटिंग के लिए ब्रांड रिकग्निशन होने लगता है कि ठीक है पीपल नो दिस. एक उसका सर्टेन एक यूनिक सा डिजाइन है. Mm-hmm. तो पीपल whenever they see that they can immediately recognize and they know the entire back story. Mm-hmm. राइट. ऑल्सो आप एक स्टोरी जो है नरेटिव है कि मैं कौन हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ ये क्या प्रोडक्ट है. राइट. ये दिस ऑल्सो मैटर्स. बिल्डिंग अ ब्रांड द Mm-hmm. स्टोरी ऑल्सो मैटर्स. सो वेरी फॉर्चुनेटली व्हेन थिंग्स फॉल इन योर फेवर ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई कि मैं हिस्ट्री चैनल पे भी बोला सोनी पे भी इस पे भी उस पे भी. तो पीपल हैव दैट रिलेशन. उससे ना देर इज मोर सॉर्ट ऑफ लिबर्टी दैट यू हैव कि Mm-hmm. ठीक है अभी मार्केटिंग करने का नहीं है इतना ज्यादा. लोग आर विलिंग टू बाय विलिंग टू book it. There is little more trust that is there and online sales में the trust is always missing. आप Yes. भी कितनी बार कोई देखोगे तो 2-3 बार सोचोगे before you buy the button unless you trust it. Yes, So yes. like that. तो ट्रस्ट बिल्डिंग ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर आपके पास अच्छा मार्केटिंग है तो. हाँ. अदर देन दैट आपको या आपको कुछ मतलब लाइक मेरा पूछने का ये मतलब था कि अगर आपका रूरल एरिया में काफी अभी मार्केटिंग हुआ है काफी लोगों ने आपको जानना शुरू कर दिया है सो आपके पास कुछ सेल्स ग्रोथ हुई है कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है लोग आपको ऑफ रीच आउट कोर्स कर रहे हैं सो ऑफ हाउ मच कोर्स ऑफ परसेंटेज कोर्स. यू हैव सीन इन ग्रोथ look we don't have those sort of demographics here कि मैं हर मंथ बैठ के देखूं कि मेरे को कितना इन्फ्लुएंस आया कितना नहीं आया. ये है कि there is an exponential growth in the queries that we are getting. Hmm? हम्म We have close to 6,000 now pre-bookings where people are ready to go ahead with it. We have more 6,000 than bookings you already have of right course yes pre-bookings yes. okay And more than 60-65 dealers have come to us for dealership options. okay wow Right. All of this has happened without us spending a single rupee on marketing. great A single rupee. And then every day I right now I can get mm-hmm. my phone and I can my other phone. Mm-hmm. Want to guess the number of what's unread WhatsApp messages that I have? how That many 23,000. oh my god Right. mm-hmm. So and हम 3 लोगों की टीम है जो इसको हैंडल करती है इनबाउंड सब लीड्स को. Mm-hmm. रिप्लाई करते हो तो और आ जाता है रिप्लाई करते हो तो और आ जाता है. Mm-hmm. राइट. तो वो तो चलता ही रहेगा. इट्स अ Yes. गुड प्रोडक्ट एंड वी हैव लाइक आई वाज सेइंग इनिशियली उसका नरेटिव और मेरा इंटेंट क्लियर है क्या Mm-hmm. मैं करना चाहता हूँ और क्या मेरे को प्रॉब्लम आता है और क्या इशू है वो सबको ठीक से पता चल गया है. तो Mm-hmm. उससे ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्ट जनरेट होता है डीलर्स के लिए होता है कंज्यूमर के लिए होता है और हर हर एस्पेक्ट में. आई मीन if I have see 23,000 messages that those messages will be consumers investors dealers some collaboration somewhere some even you for that matter right you messaged us. Mm-hmm. You are one of those people that messages us every week के यार यहाँ podcast आ जाओ वहां उसके लिए आ जाओ उधर इंटरव्यू के लिए आ जाओ उधर इस इवेंट पे आ जाओ. So you need all of that to Yes. to get your story out and उस स्टोरी की वजह से बहुत इजी हो जाता है. अभी हमको वरी करने का जरूरत नहीं है. अभी Okay. वी आर ओके वी कैन एंटायरली कॉन्सेंट्रेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग नाउ कि ठीक है डिमांड है मुझे पता चल गया है
Okay. पीपल आर विलिंग टू पे देयर मनी, मुझे पता चल गया है, तो लेट्स जस्ट बाइट व्हाट वी कैन च्यू। Mm-hmm. कितना बुकिंग लेना है, कितना कुछ उठाना Mm-hmm. है। लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स विद अ टेक स्टार्टअप। टेक में ना ये सब बहुत क्विक होता है, ऐप बन के रखा है, आप जल्दी जल्दी करते जाओ, जोमेटो की तरह या किसी की तरह। Mm-hmm. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना एक स्लो मूविंग सेक्टर है। Mm-hmm. डीलर्स तो अगर एक स्टेट में बन सकते हैं मेरे 60, मैं Mm-hmm. पैन इंडिया खोल देता हूँ तो 2000 बन जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। बट Mm-hmm. उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन तो उस लेवल पे है नहीं है, और उसको जाने में टाइम लगेगा अभी। So Mm-hmm. what are we supposed to do? So it is you have to have a lot of patience when it comes to manufacturing sector, old school sectors. Keep in Okay. mind that ऑटो एक्सपो पे आप जाते होगे, Mm-hmm. ऑटो एक्सपो पे जाओ ना तो कोई गाड़ी देखते हो आप वहां पे, Mm-hmm. हाँ, किसी कंपनी का, टाटा का, महिंद्रा का, उसको लॉन्च होने में 3-4 साल लगते हैं, जबकि वो रेडी खड़ी होती है वहां पे। Mm-hmm. आज भी अगर मैं एक थार महिंद्रा की लेने जाता हूँ ना तो 1.5 साल की वेटिंग है। अब Mm-hmm. मैं अगर महिंद्रा से पूछूं क्या मेरी थार बनाने में 1.5 साल लगेगा, तो इनफैक्ट आंसर इज हाँ, लगेगा। Mm-hmm. Because this is a slow moving sector. Yes. It doesn't function like your other sectors. Right, So right. so marketing होने से एक थोड़ा ईज हो जाता है कि ठीक है, वी हैव ईज ऑफ, आई मीन सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। द Mm-hmm. पब्लिक डिमांड इज देयर, बुकिंग्स आर देयर एंड द ट्रस्ट इज देयर। अगर ये ट्रस्ट नहीं होता तो कोई बुक नहीं करता। स्टार्टअप है, आज है कल नहीं है, पता नहीं एक वेबसाइट क्या है, Mm-hmm. nobody wants to book and put up that sort of money. बट अभी वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, अभी रिकग्निशन हो जाता है, तो दैट हेल्प्स इन मेनी 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 डिफरेंट वेज। तो कितना टाइम लगता है कन्वर्जन किट बनने में? Like somebody has given order to you just right now. So how much time it will take? See, right now we are at about 1,500 units a month, Mm-hmm. right? And by at the end of this year, we are hoping to bump it up to about 8,500 units a month. That's what I said. We are at 1,500 units a month, Mm-hmm. right? We Mm-hmm. make 1,500 units, 1,500 of those kits in a month. Mm-hmm. So that is our upper capacity at this moment. By the end of this year, we Mm-hmm. will reach a point where we have upscaled our production to about 8,500 units a month. ओके ओके एंड लाइक हाउ लाइक आपके टीम मेंबर्स कितने हैं, मतलब कितनी बड़ी टीम है आपकी? We are about 20 people, give or take. Some are permanent, some are, contractual. Then the work staff is there. So yeah, सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन दिल्ली और वेयर? in Najafgarh, इन नजफ. it's it's in Delhi. Yeah. ओके. So if I ask about your revenue sources, like what is your revenue sources? I mean, if we are a product-based company, then it has to be a product-based revenue, right? और तो कुछ आने नहीं वाला है. So Okay. of course, the product Which is gives us the conversion kit revenue. only. Of course. Okay. And are you planning to sell your product conversion kit to other companies also? Like you have made this kit for bicycle, for pedal vehicles, but I want to know that are you planning to sell this invention to someone else also? Like if somebody is making bicycle and they want your product in Mm-hmm. bulk. So are you Okay. doing that also? Are you planning to do that also? You mean like a brand who's manufacturing bicycles like Hero and Avon Yeah, and yeah, and they want your Decathlon? product. Yeah. Yeah. See, okay, so here is the intent. देखो, हर चीज ना इंटेंट पे चलता है। इंटेंट क्या है? Mm-hmm. अगर मेरा इंटेंट जो है एक रेवेन्यू बेस्ड अप्रोच पे होता, Mm-hmm. राइट, तो मैं क्या करता, ये अभी तक यहाँ तक वेट नहीं करता, जैसे ही पेटेंट होता ना तो पेटेंट किसी को दे देता, ठीक है, Mm-hmm. Mm-hmm. और मैं अपना हो जाता अलग से। इट वुड बी जस्टिफाइड, आई एम R&D गाय, why do you think I am bothering with all of this nonsense, right? Mm-hmm. एंड फिर जिसका जो काम है वो कर लेता। Right. अब उससे इशू क्या होता है कि अगर मेरा इंटेंट रेवेन्यू बेस्ड है, मतलब मेरे को कोई मदर टेरेसा नहीं बनना है, पर मेरा अगर इंटेंट एक ये चेंज लेके आना है, कि Mm-hmm. यार 50 साल से लोग एक चल रहे हैं, या अगले 50 साल भी इसी पे ही चलने वाले हैं, अगर और तो कुछ मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा, मेरे पास एक सोल्यूशन है, बट मेरे को ही बहुत टाइटली इसको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट एट द एंड पे तो यूजर को ही देनी है। Mm-hmm. हर कंपनी के पास ना तो वो बैंडविड्थ है, Mm-hmm. मैंने बताया ना, R&D के नाम पे तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, Mm-hmm. नथिंग एट ऑल, एब्सोल्यूट नथिंग। मतलब सिर्फ असेंबली होती है, अगर एक नट को भी लेफ्ट से राइट करना पड़ जाएगा तो वो असेंबली बंद हो जाएगी। Yes, yes, true, true. ट्रू। अब उस केस के अंदर ये प्रोडक्ट तो इवॉल्व करना पड़ेगा, एवरी Mm-hmm. कपल ऑफ मंथ्स इसके अंदर एक एवोल्यूशन होगा, इसको चेंज होगा, Mm-hmm. राइट। सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आते हैं तो वर्जन 1 2 3 4 ही चलता रहता है पैरेलली।
सो पहली बात तो वो कैपेबिलिटी अगर किसी के पास होगी तब तो मैं उनसे बात करूंगा, उससे पहले तो कोई पॉइंट ही नहीं है बात करके कंसिडर करने का। दैट इज वन। सेकेंड इज, अभी एक स्टार्टअप के पास ना स्पीड होती है और बहुत एक निम्बलनेस होता है। अभी हम एक तरह से D2C कर रहे हैं ना, हम बना रहे हैं, सीधा कस्टमर खरीद रहा है, ओके। बीच में कोई लेयर ही नहीं है, राइट। बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं। आप अभी महिंद्रा थार नहीं खरीद सकते हो अमेजोन पे, राइट। इस तरह, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल। अब वो उसी चैनल के थ्रू आएगी, वेरएज एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक स्टॉकिस्ट होगा, एक डीलर होगा, एक एजेंट होगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एवरीबडी इज यूज टू 10 to 12 to 15% ऑफ मार्जिन। अब ये तीन तीन लेयर्स का मार्जिन आप जोड़ लो, उसके बाद एंड पे जाके तो कस्टमर को ही देना है, तीनों लेयर पे जीएसटी भी लगता जाएगा, उसको भी जोड़ लो, तो वैल्यू चेन ये जो बनेगी, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उस पार्ट से है कि एंड कस्टमर कैसे देने वाला है। तो ये मेरा आइडिया नहीं ना, ये तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स तो ऑलरेडी मार्केट में है, मैंने थोड़ी इन्वेंट करा है इलेक्ट्रिक साइकिल। बट वो दे आर नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूटिंग टू 1% ऑफ द एक्चुअल, वन भी छोड़ो, मतलब 0.5% भी नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। So to find a partner who is in sync with all of this, right, is very difficult. And especially अगर टेक बेस्ड होता तो बहुत सारे प्लेयर्स होते, तो उनसे शायद हो सकता है किसी से अपना अच्छा सिंक हो जाता। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल और दैट टू बाइसिकल्स, मतलब ले दे के 3 या 4 प्लेयर तो रह गए हैं। दीज आर ऑल जनरेशनल बिजनेसेस, पास्ड ऑन जनरेशन अपॉन जनरेशन, with the Hero Group and with the Avon and with the TI cycles and all. So there are handful of players, and उनके साथ अभी we are also not at that level that we can leverage a deal. So long story short, I am open for collaborations, right, as long as the intent is being fulfilled. Okay, okay. So, like, if I ask about that, your company has been manufacturing this product, conversion kit. So, I just want to know that if you are providing this conversion kit to someone, so what will be the whole procedure? Like, I am a customer and I am reaching you for conversion kit. So, what will be Right. the procedure? Okay, so right now what has happened is that we have surpassed the bookings that we were expecting. Okay, तो अभी वो इतना बुक हो गया, वो पूरा ओवर बुक हो गया है। So we are taking no more bookings now, right? Neither are we going into online sales at all, because we just don't have the bandwidth. Our entire concentration is, number one, to go into the retail sector in Haryana, old school way, penetrate पूरा ground level से. That is one. Second, we entertain B2B clients more like B2G clients, business to government. Okay. Indian Army is one of our clients. I don't want to name other institutions that are there because we have signed NDAs and all. कुछ associations हैं, आइसक्रीम एसोसिएशन है, कुछ NGOs हैं. So these are players who have large consumption. One player has large consumption, like the army. We did post the pictures and everything. We are working on several projects with the army. So they get priority. So abhi kuch time tak priority will be to B2B and to D2C. Online sales abhi immediately we will not be able to handle. So if somebody wants to buy, what they can do is they can go to our website. There's a form which you can fill up with your information, and whenever we are ready for the booking, you can go ahead. That is one. Second, for the pre-selected customers that we select, that okay, fine, we can provide the kit to you. So they go to our website. When the payment section, our website will ask for a referral code, which we will provide to you. You put up that referral code, the payment option will then open up, and you can then place your order online. Okay, the person doesn't need to come to your place, right? I mean, you don't have to. Okay. Yeah. So how you deliver this conversion kit to someone? If you are living, your product is manufacturing in Najafgarh, so and somebody is living in Noida, so how you are doing? Right. Okay. जैसे मान लो आपको लेना था, ठीक है, एंड आपने बात किया, एंड आई रियलाइज कि ठीक है, आप आपको कर देते हैं. सो आपको मैंने एक रेफरल कोड दे दिया. आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आईसीआईसीआई का पेमेंट गेटवे लिंक्ड है हमारी वेबसाइट से. आप वहां पे जाके ऑर्डर पे क्लिक करोगे, वो रेफरल कोड मांगेगा, आप रेफरल कोड डाल दोगे,
पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा, आईसीआईसीआई के थ्रू आप पेमेंट कर दोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जो भी करना है, यूपीआई है, हम्म वो जो भी करना है। हम्म वो होने के बाद मेरे पास आपका ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। मेरे पास अभी कोरियर कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स है, एरामैक्स है, डीटीडीसी है, हम्म बहुत सारे हैं। हम्म इनमें से जो भी बेस्ट होगा मैं आपको ये कुरियर कर दूंगा, ये आपके पास आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा तो उसमें जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आप कर लोगे। आपको आपको चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं करना है, टेक्नीशियन आएगा तो हमारा टेक्नीशियन आके कर देगा। Okay. So it's as simple as that. You are delivering conversion, you are making it, you are delivering it, and if somebody wants technical guy, so you are providing that also. So whole like whole process, how much it take? See, I'll tell you what, at 14,000, I Mm-hmm. mean, the kit is available. We have two variations. Mm-hmm. The kit cost, one is 10,000, one is 1399. Mm-hmm. Because सिर्फ बैटरी का डिफरेंस होता है दोनों में, रेंज का, दैट्स इट। आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स, लाइक वेर एवर यू लिव एंड जो भी आपको सर्विस चाहिए, क्या चाहिए, देन इट्स, आई मीन, इट्स अप टू यू। आप नोएडा में हो तो आपको शिपिंग कॉस्ट वो होगा, कोई Mm-hmm. चेन्नई में बैठा है तो उसका अलग होगा, सो लाइक दैट। ओके सो लाइक आपको किस जगह से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, लाइक दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, पंजाब, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, यूपी, हम्म हरियाणा, ये हम्म सबसे ज्यादा यहाँ पे साइकिल्स की कंजम्पशन है। इसी हम्म वजह से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हमारे पास यहाँ है। महाराष्ट्र इज अ वेरी बिग स्टेट, हम्म बहुत ऑर्डर्स हमको महाराष्ट्र से आते हैं। So हम्म these are the 4-5 states which constitute the higher हम्म numbers for inbound queries. Yeah. Okay. So if I ask about your business model and challenges, like what kind of challenges you have faced till now in I this? just explained that ना कि हम्म जो मैकेनिकल इंडस्ट्री के चैलेंज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं, हम्म वो एक मेजर इशू है ही है। लोग हम्म नहीं मिलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स ही खत्म हो रहे हैं, और हम्म कोर लेवल पे आरएनडी के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं अभी, हम्म जो सॉल्व करने पड़ते हैं। हम्म That is one major thing, and marketing would have been a very big challenge, हम्म and but fortunately वो हमारे केस में थोड़ा सा सॉल्व हो गया, बट स्टिल हम्म रूरल सेक्टर के अंदर सेल तो आप कर दोगे, सर्विसिंग हम्म भी करना, हम्म एंड पूरा कंज्यूमर अवेयरनेस अभी उतना नहीं है इलेक्ट्रिक के लिए, सो हम्म वो सब देना is a challenge, and then of course running a startup is a challenge in its own. I mean, फंड्स का एक बिकम्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, वो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ वो चाहिए, कोलैबोरेशन में कुछ ना कुछ चाहिए, हम्म it keeps you busy. So yeah, I mean, that's what it is. Okay. So and are you seeking any vendors or partners in your business? I also just explained, I think half of your questions I have already explained while explaining Yeah, other yeah, questions. yeah, yeah, true, true. I am pretty open to any collaboration comes in, but as far as the objective is And the similar. intent should be clear. Intent should be clear, and my intent, I have been very clear what my intent. See, I am also not fucking running a charity. कि हम्म कोई ये ना, एक कुछ जब समाज में कुछ चेंज लाना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत क्या है ना, रूल बेंड करने पड़ते हैं। अब हम्म चैरिटी भी मैं नहीं करना चाहता, और मैं कोई एक कंपनी मेरा बंद हो जाएगा, बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहता, प्रॉफिट्स तो ऑफ कोर्स, सो दिस बिकम्स मोर लाइक एन इम्पैक्ट हम्म स्टार्टअप। और इम्पैक्ट स्टार्टअप ऐसे ही फंक्शन करते हैं, हम्म मनी का रहता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोई एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, उसके लिए मनी तो चाहिए ही चाहिए, हम्म नीडलेस टू से। Yes. आपको अगर आधे बिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो क्या 50-60 करोड़ में थोड़ी हो जाएगा सॉल्व, सो हम्म नीडलेस टू से। बट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव मेरा सुबह शाम यही हो कि मुझे आईपीओ निकालना है, मुझे यूनिकॉर्न बनना है, मुझे आईपीओ निकालना है, हम्म ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज समबडी, एंड आई डू हैव पार्टनर, मेरे बहुत सारे वेंडर मेरे मेरे हम्म पार्टनर्स हैं, बहुत जगह पे, वी हैव पार्टनर्स, वी हैव आवर पीपल, आई मीन, द वंस हु शेयर द सेम विजन, सो या। Okay. And like, what are you doing for waste management? Because when you are manufacturing something, so there should be like some waste also. So how you are managing that? Well, in electric there isn't a lot of waste. हम्म ये automobiles वगैरह में, because here you hardly have any moving parts, हम्म and most of the waste that we have, it comes in form of metals. Like, हम्म one reason we are using the aluminium, because जो aluminium का scrap और waste निकलता है, it gets back into the system and is recycled, हम्म and that recycling also happens in house.
because it's very simple to recycle aluminium. कोई उसमें chemical नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. So just like that. Other than that, there's hardly any waste that comes out. Hardly any. So the carbon footprint that each kit has is negligible if you compare it to an engine. Negligible. Okay. Probably less than 0.5%. You just mentioned about your two kind of conversion kits, and you shared price also. Like you said that there are difference of batteries. So I want to know, Right. I want to know the both of batteries, like how which battery you are using in 10,000 Right. conversion kit, and what in In 13,000 the 1999. Sure. Right. So the one for 13,000 has a 12 Ah battery, and the 10,000 one has a 6 Ah battery. The Okay. battery size is the only difference. The battery size छोटा होने से range भी कम हो जाता है. Our 6 Ah gives you about 18 to 20 kilometers. The 12 Ah gives you about 36 to 40-ish kilometers, something there. Yeah. So that's the only difference. Other than that, everything else is the same. And once you have charged the battery, like how many hours it can work? Like if So somebody, it's yeah. okay. So you can't put it in hours because this is not a stationary application. You put in kilometers. अब Okay. वो 40 किलोमीटर चल सकती है. अगर आप स्लो स्पीड पे चलाओगे तो वो ज्यादा चलेगी, या फुल स्पीड पे चलाओगे तो 40 किलोमीटर, चाहे 25 का टॉप स्पीड है तो 1.5 घंटा चलेगी. So अच्छा. like that. Okay, okay. And apart from that, pedaling से भी वो charge हो जाती है. Of course, pedaling तो है ही है. आप Yes. pedal तो कर ही सकते हो. So is there any future investment or business plan or any new product launch you are planning to announce, which you would like to share with us? Yeah, sure. I mean, right now we are looking at expansion, and expansion specifically in terms of manufacturing. We want to bump up this number to 8,500 units a month. We have the consumption is there. We have several parameters to tell us that consumption is there in millions. So it's just a number of how fast can we scale up our production. बाकी सब तो हो ही गया है. So if any partner is there who is a strategic partner can help us in scaling up our production manufacturing, we'll be glad to collaborate with such a partner. Okay, and how is if I would ask about the percentage growth of your fiscal growth last year to this year, because from last year I think your monetization has been started. Okay, so how was the growth from last few years till now? Okay, so this is more like a boardroom question, and I'll give you a boardroom answer. Huh? Okay. अभी क्या है कि पिछले साल तो सेल नहीं हो रही थी, राइट? अगर इस साल 1,000 यूनिट बिक गए तो टेक्निकली तो 10,000% ग्रोथ हो गई ना. तो for a startup, these growth numbers are just figures, facts and figures. You want to play with facts and figures, I can give you all the facts and figures that you need. I don't believe into any of that. ठीक है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम है अभी हम उसको स्क्रैच भी नहीं कर पा रहे हैं. ये परसेंटेज छोड़ो कि किसका क्या ग्रोथ था. Okay. अभी 1,500 यूनिट से तो वो प्रॉब्लम मेरे को शायद 200-250 साल लग जाएंगे सॉल्व करने में. जितना बड़ा इशू इसका है, इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू रीच अ पॉइंट वेयर वी आर एटलीस्ट सेलिंग 1 million units a month. I'm sorry, annually. Okay. If we are selling 1 million, then at least in the upcoming 8 to 10 years ये प्रॉब्लम को शायद मैं सॉल्व करूंगा, राइट? या इसको एक एटलीस्ट एक डेंट मारूंगा इसमें कि ये कम हो, हाफ हो कम से कम. मेरा ऑब्जेक्टिव वहां से आ रहा है. ये जो नंबर्स और ग्रोथ में होते हैं, आई डोंट बिलीव इनटू एनी ऑफ दैट बिकॉज दे आर वेरी इजीली मैनिपुलेटिव. यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन पुट अप दिस, यू कैन पुट अप दैट. एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ स्टार्टअप, लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, लास्ट ईयर अगर कुछ नहीं कर रहा था और इस साल अगर मैं सिर्फ 10 यूनिट बेचता हूँ तो टेक्निकली तो 10x ग्रोथ हो गई ना. I mean, वो numbers ना figures facts तब बनने लगते हैं when you reach a certain point. उसके बाद ये सब logical होने लगता है. So we are not at that yet. Hopefully, when we have the same interview again, maybe 2 years or 3 years down the line, I'll have much better numbers and figures for you. For right now, namesake, we were not into production, and right now we are 1,500 units a month. That is a big thing. Okay, and what is your expectation from the upcoming 2 years? I just explained to you, man. That by the end of this year, we will reach 8,500 units a month. Okay. Right? And then by the next year, we will have to compound that number to reach to somewhere around 15,000 units a month. That is the target. If we are able to do that, then those are the realistic goals that we are focusing ourselves on. Okay. And expand into other states. Na? If we have more numbers, we can solve problems
not just in Haryana, Punjab. Na, we can concentrate on bigger states like Maharashtra and UP. Right. Right now, we are not able to concentrate there. वहाँ पे भी problem है. So, her state. So right now, the whole priority is to bump up the manufacturing as fast as possible. ओके अच्छा, ये जो कन्वर्जन किट है, जो इफ समबडी इज यूजिंग, सो हर चीज का एक वो होता है, वैलिडिटी होती है, लाइक आप कितने साल तक इसको यूज कर सकते हैं. Right. सो Okay. So, well, जैसे एटलस साइकिल आई थी ना, हम्म तो एटलस साइकिल की कोई ऐसी एक्सपायरी डेट नहीं थी. हम्म एटलस साइकिल अभी भी आपको दिख जाएगी. मेरे पास ये खड़ी हुई है, वो 1978 की बनी हुई है, अभी भी चल रही है. हम्म तो जब अच्छा कोई प्रोडक्ट आता है ना, हॉकिंस कुकर होगा आपके घर में, हाँ, सुमित की हो सकता है, सुमित की मिक्सी हो या ये सब चीजें हो, ऐसा ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं आती. ये आजकल एक ट्रेंड है कि इतने ही पार्ट में ये हो जाएगा ताकि आप अपडेट कर लो और फिर नया. तो ये कंजम्पशन बढ़ाने के एक तरीके होते हैं. बट मैकेनिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में ये सब वैलिड नहीं होता. यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट जो होता है, इट इज सपोज टू पोटेंशियली लास्ट योर लाइफ टाइम. दैट इज वन. सेकेंड, इलेक्ट्रिक्स में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, राइट? तो जब मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कुछ घिस रहा है या कुछ हो रहा है. अगर आप प्रॉपरली इसको मेंटेन करते हो तो दे कैन लास्ट यू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. The one thing that depreciates over time are the batteries. बैटरीज में कुछ होता नहीं है, बस उसकी जैसे आपका फोन है ना, थोड़ा बैकअप कम हो जाता है, फिर थोड़ा और कम, हर साल 2-3-5%, 2-3-5%, ऐसे करते करते अराउंड 5 साल के बाद, शुरू के 5 साल नहीं होगा, 5 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाएगी. That is like those things come in maintenance. You So keep battery it can be maintained. changed. Of course. Yes. आप अगर मेंटेन करके रखेंगे तो दिस विल लास्ट यू लाइफ टाइम. जस्ट लाइक कार, दे लास्ट यू लाइफ टाइम इफ यू मेंटेन देम. आप मेंटेन करो. ऐसा कुछ वो सेल्फ कंज्यूमिंग कुछ वो नहीं है कि दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर कि वो आउटडेट हो जाएगा. आप अब क्या करूँ जी, मैंने एंटीवायरस लिया था, अब ये काम नहीं कर रहा है, या ये फोन है तो ये. दिस इज नॉट लाइक दैट. These old school sectors are different. They will last you a lifetime. और like, do you provide any after sale services also? Of course. Okay, so And of course, इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में या इस सेक्टर मोबिलिटी में आना है ना, तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए आफ्टर सेल. आप चला रहे थे, गिर गया तो कुछ टूट गया, अब क्या करेंगे? तो आफ्टर सेल तो इमीडिएटली डे 1 में ही देना होगा. इनफैक्ट टेस्ट राइड्स देने होते हैं, क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं. नई टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक, कितना लोग जानते नहीं है अभी. वो लोग सिंपल सवाल पूछते हैं, अरे यार करंट तो नहीं आ जाएगा, पानी तो नहीं चले जाएगा, मैंने तो ऐसा सुना था, मैंने ऐसा देखा था, मुझे तो टच एंड फील. तो एक फ्रंट एंड होता है जहाँ पे टेस्ट राइड होती है, सेल सर्विस होती है, आफ्टर सेल्स होता है, एक कंज्यूमर हेल्पलाइन. तो एवरीथिंग नीड्स टू बी देयर. Okay. So that's it. That was the questions.